Hello students, hope you all doing good. Let's start today's chapter, bones, muscles and nerves. Learning objectives. Different organ systems of human body, functions of the organ systems, importance of a skeletal and muscular system, functions and importance of nervous system. Every organism is made of cells. Cells combine to form tissues, tissues combine to form organ, and organs work together in an organ system. Organ system combine to make an organism. Our body is a most wonderful machine. It is made up of many organ systems which perform a particular function. All the organ system works together as a team. Every organ of the organ system has a special job to do. देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना सब वो सेल से बने, फिर सेल्स कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम एंड देन आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम जो कंबाइन हो जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. हमारी जो बॉडी है एक वंडरफुल मशीन है जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी है जिसके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं. तो क्या क्या फंक्शंस हैं अब वो हम इसमें डिटेल में जानेंगे. There are mainly 8 organ systems in the human body. देखिए आपके मेन 8 organ systems हैं, उसमें कौन कौन से organs involved हैं और उनका function क्या है, ये सारा इसी टेबल में आपको दिया गया है. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें skeletal system, इसमें आपके organs involved हैं bones and what are the functions to give shape and structure to body. Muscular system, organs involved muscles and function to help in the movement of organ. Right? Muscles आपको organ के movement में help करते हैं. Digestive system में आपके ये ऑर्गन्स हैं एंड फंक्शंस हैं टू डाइजेस्ट द फूड. नर्वस सिस्टम में आप में के सारे ऑर्गन्स हैं एंड इसका काम होता है बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना. सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ये सारे ही ऑर्गन्स हैं एंड फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना एंड ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के हर पार्ट तक. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपके 3 ऑर्गन्स आते हैं एंड मेन फंक्शन ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, टू ब्रीथ. नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें आपके आते हैं किडनीज, यूरेथ्रा एंड स्किन एंड इसका फंक्शन है टू एक्सक्रीट वेस्ट. एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एंड इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस यंग वंस. In this chapter, we shall study about the skeletal, muscular and nervous system in detail. Skeletal system. Have you noticed ever that while constructing a house, a frame of metals, walls and cement is used to give a strength to the house? In the same way, human skeleton is a framework of bones which gives shape, structure and support to the body. The bones hold up our body just like pillars in a house. As we feel safe inside the house, our delicate internal organs like lungs and heart are also safe inside the skeleton. There are 206 bones in the skeleton of an adult human being. आपने कभी घर को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा है? उसमें आपका एक फ्रेम ऑफ मेटल्स होता है, वॉल्स होती है, सीमेंट होती है जो कि हाउस को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह से ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो फ्रेमवर्क होते हैं बोन्स का जो बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है एंड बॉडी को सपोर्ट करता है. राइट? जो बोन्स है हमारी बॉडी को एक पिलर्स की तरह होल्ड करके रखते हैं. जैसे घर में पिलर होल्ड करके रखते हैं ना, हम सेफ फील करते हैं. जैसे घर के अंदर हमारी जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी हमारे सेफ रहते हैं. राइट? हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206. Do you know a newborn baby has nearly 300 bones, but as he grows up, some of them fuse together and finally 206 bones remain in an adult body. जब एक नया बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसके 300 के अराउंड बोन्स होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फ्यूज होके वो बोन्स हो जाती हैं 206. The main organs of the skeletal system are bones. What are bones? The hard structure which we can feel in our fingers, hands, toes, legs, etc. are bones. Skin, the largest organ of the body, covers the bones of our body. Bones make approximately 1/5 of the total weight of our body weight. They are made up of tissues, hence are living. Bones grow with the supply of blood and nerves attached to them. They are soft and spongy from inside and hard from outside. Minerals like calcium, phosphorus, iron and chlorine give them strength. अच्छा, जो मेन ऑर्गन्स हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के वो एक्चुअली क्या है, आपके बोन्स. बोन्स क्या है? जो हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे कभी अपने फिंगर्स पे देखिए, फील करेंगे, राइट? कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है तो वो आपका बोन है. स्किन आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन है, रिमेंबर दैट. ओके, एंड ये आपकी बोन्स को कवर करती है और आपके जो बोन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आपके टोटल वेट का 1/5 है. ये आपके टिश्यूज से बने होते हैं, इसीलिए लिविंग होते हैं. बोन्स
ग्रो करते हैं जब उनको सप्लाई मिलता है ब्लड का, एंड इसके साथ आपके नर्व्स अटैच होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं इनसाइड से और हार्ड होते हैं आउटसाइड से। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड क्लोरीन। The human skeleton is divided into 4 main sections. The skull. The skull protects the brain. It is a bony box of 8 thin bones. Besides these 8 bones, it has 4 more bones to give it a shape which gives protection to the eyes, ears and the nose. All bones in the skull are immovable except the bones in the lower jaw. Our nose and ears do not have a bone. They are made of a material called cartilage which make them to bend easily. अब देखिए ह्यूमन स्केलेटन 4 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्कल की बात करें, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आपका ये बोनी बॉक्स है जिसमें आपके 8 थिन बोन्स होती हैं। इन 8 बोन्स के अलावा इसमें 14 मोर बोन्स होती हैं जो इसको शेप प्रोवाइड करती है, जिससे कि प्रोटेक्शन मिलती है आइज को, ईयर्स को एंड नोज को। जितनी भी बोन्स होती हैं स्कल में वो इमूवेबल होती हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ। हमारे नोज एंड आइज के में बोन नहीं होते हैं। ये आपके एक मटीरियल जिसे बोलते हैं कार्टिलेज, उससे बना होता है। कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो कार्टिलेज आपका काफी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि एक इलास्टिक टिश्यू होता है। रिब केज, as the name suggests, it is actually like a cage where our delicate organs like heart and lungs are safe. It is made up of 24 delicate curved bones. The first 10 pairs of ribs are joined to the spine at the back and to the breastbone in the front. The remaining 2 lowest pairs of ribs are only attached to the spine at the back and not in front. Hence, they are called floating ribs. You can feel your ribs by running your finger across your chest. अब देखिए रिब केज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है केज है। ये हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं लाइक जैसे कि आपका हार्ट है, आपके लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये आपका बना होता है 24 डेलिकेट कर्व्ड बोन से। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज। स्पाइन और बैकबोन. Our backbone is made up of 33 small bones called vertebrae, which join together to form the vertebral column. Its main function is to support body and to protect the spinal cord. The spine is in the shape of S. This shape makes it flexible and helps prevent shocks and jerks to our head when we walk or run. अब देखिए बैकबोन आपकी बनी है किसने? 33 स्मॉल बोन से, जिन्हें बोलते हैं वर्टिब्रे. इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को सपोर्ट करना, राइट, एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना. ये देखिए एस की शेप में दिख रहा है आपको, इस तरह से. ये शेप जो होता है, ये जो शेप से बहुत ही फ्लैक्सिबल हो जाता है, इसीलिए कोई भी शॉक या जर्क्स लगते हैं हमारे हेड पे तो उससे हमें प्रिवेंट करता है. द लिम्स, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी. द आर्म्स, फोर लिम्स, द लेग्स, हिंड लिम्स. देखिए आपके लिम्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, आपके फोर लिम्स यानी आर्म्स एंड आपके लेग्स यानी कि हिंड लिम्स. Do you know there are 27 bones in our hand and wrist? The upper arm has a single bone called humerus. The lower arm has 2 bones, radius and ulna. There are 206 bones in our leg and ankle. The upper leg, that is femur, also known as thigh bone, is the longest bone of our body. The lower leg has 2 bones, labia and fibula. Both the bones are joined at knees like arm bones joined at elbow. देखिए हमारे हैंड एंड रिस्ट में आपकी बोन्स है कितनी? 27. जो अपर आर्म में एक सिंगल बोन है उसे कहते हैं ह्यूमरस, एंड जो लोअर आर्म है उसमें आपके 2 बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना. आपकी लेग एंड एंकल में है 26 बोन. अपर लेग को यानी फेमर को हम कहते हैं थाई बोन, जो कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है, रिमेंबर दैट. और लोअर लेग में आपके 2 बोन्स हैं, लेबिया एंड फिब्यूला. Joints. A place where 2 bones meet is a joint. The bones bend at the joint and allow us to move easily. Strong elastic tissues known as ligaments hold 2 bones together at joints which help to move various body parts. There are 2 main types of joints in our body. देखिए एक प्लेस जहाँ पे 2 बोन्स आपकी मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट. तो बोन्स जो हैं वो इस जॉइंट पे बेंट होती हैं एंड हमको मूव करने में हेल्प करती हैं, राइट. जैसे आपके स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज जिनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, वो 2 बोन्स को साथ में जोड़ के रखता है जॉइंट पे. Movable joints. These joints help in free movement of body parts. There are 4 kinds of movable joints in our body. तो joints में सबसे पहले आपका आता है movable, जो कि आपको बॉडी के पार्ट को फ्रीली मूव करने में हेल्प करते हैं. तो इसके भी 4 टाइप्स हैं. सबसे पहला है आपका हिंज जॉइंट. ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और ये कहाँ पाया जाता है? आपके
इन जगहों पे। नेक्स्ट इज पिवट जॉइंट, ये आपको क्या करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइडवेज मूव करने में हेल्प करता है और ये आपका पाया जाता है इन द नेक। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बहुत सारी डायरेक्शंस में आपका मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर्स एंड हिप्स। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, ये आपको बेंड करने में हेल्प करता है, ट्विस्ट करने में हेल्प करता है एंड टर्निंग में हेल्प करता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके रिस्ट एंकल्स एंड बिटवीन द वर्टिब्रेट ऑफ स्पाइन। Next is immovable joint. They are fixed joints and show no movement. For example, bones of a skull except lower jaw, rib cage, etc. अब immovable यानी जो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, right? मतलब जो मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं शो करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की स्कल की, सिर्फ उसमें लोअर जॉ जो होता है वो आपका मूव करता है। Muscular system. Muscles are soft, stretchy and elastic bands of tissues. They are attached with bones by strong fibers called tendons. They work with muscles and move the bones of our skeleton. There are about 640 muscles spread all over the body. Muscles help in movement with bones and joints. Contraction and relaxation of muscles cause movement of bones. We cannot move any part of our body without using our muscles. Types of muscles. 3 different types of muscles make the muscular system. They are skeletal muscles. These muscles are under our control, that is we can use them at our will. Therefore these muscles are also called voluntary muscles. They are also known as stripped or straighted muscles as they have stripes or bends on them. These muscles are present in arms, legs, hands, feet, etc. अब देखिए मसल्स आपकी सॉफ्ट होती हैं, स्ट्रेची होती हैं, इलास्टिक बैंड्स होते हैं टिश्यूज़ के, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के साथ जिसे कहते हैं टेंडन्स। ये मसल्स के साथ काम करते हैं एंड बोन्स को मूव कराते हैं। हमारी बॉडी में लगभग आपके 640 मसल्स हैं जो हमारी ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड है। अब आपकी जो मसल्स हैं वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है स्केलेटल मसल्स की, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब इन्हें हम अपनी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग इन्हें मूव करा सकते हैं, राइट। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपके जैसे मसल्स आपके आर्म्स में, लेग्स में, हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स। Next is smooth muscles. These muscles are not under our control. They work automatically. Therefore, these muscles are also called involuntary muscles. They do not have any bands or straps on them. These muscles help in the movement of food from stomach to intestine. अब ये जो smooth muscles होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए इनको बोलते हैं involuntary muscles. इनवॉलेंट्री यानी जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे फूड का मूवमेंट होता है स्टमक टू इंटेस्टाइन, वो हमारी मर्जी से नहीं होता है। Next is cardiac muscle. Heart muscles are known as cardiac muscles. These muscles are not attached to any bone. They are branched and have stripes on them. They work throughout our lifetime and never get tired due to their strength. अब cardiac muscles जो हैं आपके heart muscles को कहा जाता है। ये muscles आपके किसी भी bone के साथ attached नहीं होती हैं, ये branched होती हैं और इनमें stripes भी नहीं होता। ये पूरी लाइफ टाइम काम करते रहते और कभी भी थकते नहीं हैं। Skeletal system and muscular system together play an important role in the movement of our body parts. अब skeletal system और muscular system जो आपका एक important role play करते हैं हमारी body parts के movement पे। Nervous system. Nervous system is one of the most important systems of our body. All the functions of our body are controlled by nervous system. Nerves, the spinal cord and brain are 3 main parts of the nervous system. Nervous system का काम क्या होता है कि देखिए ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसमें आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसमें आता है आपका नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। द ब्रेन, our brain is like a supercomputer. The brain is the control center of the human body as it controls all other body systems and sense organs. It sends and receives messages from the different parts of the body through the spinal cord and nerves. The brain gets a constant supply of oxygen and glucose which give it energy to function. Human brain has been divided into 3 main parts. हमारा जो ब्रेन है एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का, यानी जितने भी फंक्शंस है बॉडी के, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ये मैसेजेस को सेंड करता है, रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन को जो है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता ही रहता है जिससे इसको एनर्जी मिलती है फंक्शन करने के लिए। अब ब्रेन को भी जो है ना 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। Number 1 is the cerebrum. It is the main and largest part of the brain that controls our sense organs. It has many folds and grooves so that it can fit into the skull. It is a center of intelligence. It controls sense organs, memory and reasoning. ये main and largest
पार्ट है ब्रेन का जो हमारी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स एंड ग्रूव्स होते हैं जिससे कि स्कल में फिट हो जाता है। ये आपका सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी और रीजनिंग को कंट्रोल करता है। द सेरिब्लम, an oval shaped structure which is below the cerebrum, it is responsible for control of our muscles activities and help us to balance our body. अब cerebellum जो है आपका oval shaped structure है जो cerebrum के जस्ट नीचे है, ये आपका किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी जो मसल्स एक्टिविटीज होती है उनको ये कंट्रोल करता है। Medulla. It is a stem-shaped structure which lies at the base of the brain. It connects the brain with the spinal cord. It controls function involved with involuntary muscles, example breathing, heartbeat, digestion, etc. ये आपका stem-shaped structure होता है जो ब्रेन के बेस में होता है। ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ और ये फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिसमें आपके इन्वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, डाइजेशन है। The spinal cord. It is a bunch of nerves that connects the brain with all the body parts. It starts from the medulla and goes down to the lower end of our backbone. Messages travel to and fro between the brain and to the rest of the body through the spinal cord. It is protected by the vertebral column. नेक्स्ट अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, इसमें आप ये क्या है, बंच ऑफ नर्व्स हैं जो कि ब्रेन को कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट के साथ। ये आपका मेड्यूला से स्टार्ट होता है एंड देन ये आपका इट गोज डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। अब जो मैसेजेस होते हैं वो टू एंड फ्रो इसमें ट्रैवल करते हैं ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू। Nerves are made up of nerve cells. They are thin wires connecting everything in our body to the brain. Nerves are of three types. Sensory nerves. These nerves bring messages from the sense organs to the brain. Motor nerves. These nerves carry orders from our brain to our muscles or organs. These messages make the muscles move and also help the glands to secrete juices. Mixed nerves. These nerves carry information or messages to the brain as well as bring orders from the brain. अब देखिए नर्व्स आपकी जो हैं वो नर्व सेल्स से बनी हुई हैं एंड नर्व्स भी आपकी थ्री टाइप्स की हैं। सबसे पहले सेंसरी नर्व्स, ये मैसेजेस लेके आती हैं आपकी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक। फिर आपकी मोटर नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स है ये ऑर्डर्स को कैरी करती हैं हमारे ब्रेन से टू मसल्स और ऑर्गन्स। इसके बाद आपके मिक्स नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स है ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं और मैसेजेस को भी कैरी करती हैं टू द ब्रेन एज वेल एज ये ऑर्डर से भी लेके जाती हैं ब्रेन से। Reflex action, an automatic reaction of the body to an event which is controlled directly by the spinal cord without the involvement of brain. You must have noticed these kind of automatic reactions whenever you touch any hot object, get pricked by any nail or thorn, step on a broken piece of glass, etc. In all these cases, you withdraw your hand or foot away instantly without thinking. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि एक बार ना हमारी बॉडी में कई बार ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं किसी इवेंट के थ्रू, ठीक है, तो उन्हें कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड करता है। इसमें ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि कोई भी आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो एकदम से हाथ हटा लेते हो, ठीक है, किसी नेल या थॉर्न पे आपका पैर चला जाता है तो एकदम से आप हटा लेते हो, या ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास पे आपने स्टेप कर लिया तो आप एकदम से हटा देते हो। तो ये जो केसेस होते हैं आपके इंस्टेंटली होते हैं, राइट, और इसमें क्या होता है कि हम अपना हाथ या फुट एकदम से विड्रॉ कर लेते हैं बिना सोचे। The sensory nerves immediately send the signal to the spinal cord. These messages do not go to the brain, which saves time and prevents major injury. अब जो सेंसरी आपकी नर्व्स होती हैं वो इमीडिएटली क्या करती है, सिग्नल्स भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक एंड देन ये मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन तक नहीं जाते, जिससे कि टाइम बचता है एंड मेजर इंजरी होने से भी बच जाता है। Let us remember, our body has 206 bones of different shapes and sizes. The skull, the rib cage, the backbone, and the limbs, arms and legs are the different parts of the human skeletal system. Bone protects the delicate organs like brain, heart, lungs, and kidneys. The spinal cord is protected by the vertebrae. There are 4 kinds of joints in our body: hinge joint, pivot joint, ball and socket joint, and gliding joint. Muscles help our body to move. The nervous system controls the different organs of our body. The brain, the spinal cord, and nerves form the nervous system. Reflex actions are controlled by the spinal cord. So children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।